الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم سبق آگے شروع کر رہے ہیں۔ تختی نمبر 2 مرکبات، اس کو پڑھانے کا طریقہ بتاؤں گا، اور تختی نمبر 3 سے آج ہم شروع کریں گے۔ تختی نمبر 2 مرکبات کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو پڑھائیں تختی نمبر 2 مرکبات، ملے جلے حروف کو مرکبات کہتے ہیں، ملے جلے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا یہ حروف وہی ہیں جو ہم نے پچھلی تختی مفردات میں پڑھے ہیں، لیکن فرق بس اتنا ہے کہ وہاں پر الگ الگ تھے، یہاں پر ملے جلے ہوئے حروف ہیں۔ پڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ بچوں کو آرام آرام سے لے کر چلیں، سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں، اور جب تک بچوں کو پوری تختی صحیح یاد نہ ہو جائے آگے نہ لے کے جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے آگے لے جائیں گے تو بچوں کا بھی ٹائم ضائع ہوگا، آپ کی بھی محنت ضائع ہوگی۔ اگر بچہ تختی نمبر 2 مرکبات مکمل کر لے، اس کے بعد اس سے قرآن مجید اٹھا کر اس میں سے پہچان کروائیں کہ بیٹا یہ کیا حرف ہے، یہ کیا حرف ہے۔ اگر بچہ صحیح جواب دے دے تو آپ اسے آگے تختی نمبر 3 میں لے جائیں، لیکن اگر بچہ اڑے یا اڑ اڑ کے سنائے یا اٹکن آئے یا بچے کو صحیح نہ آئے تو پھر سے تختی نمبر 2 پہ اسے لگائیں، مرکبات پھر سے یاد کروائیں۔ یاد رکھیں جب تک پہلی تختی پختہ نہیں ہوگی اس ٹائم تک وہ دوسری تختی نہ لے جائیں۔ جب دوسری تختی پختہ ہو جائے، بالکل پکی یاد ہو جائے، پھر تیسری پر لے جائیں۔ اگر آپ اس طرح چلیں گے تو بچہ خود بخود پڑھے گا، آگے جا کر خود بخود پڑھے گا۔ تو آج ہم تختی نمبر 3 شروع کریں گے۔ تختی نمبر 3 پڑھی حرکات۔ تختی نمبر 3 پڑھی حرکات۔ تختی نمبر 3 پڑھی حرکات۔ زبر، زیر، اور پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں، حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ بچے کو ایک دن میں یہی سبق دیں، چھوٹے بچوں کو، کہ بچے پڑھیں زبر، زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ بار بار دہروائیں، جب بچوں کو یاد ہو جائے ایک دن کے لیے یہ سبق کافی ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ آگے حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کی 2 قسمیں ہیں۔ حرکات کی کتنی قسمیں ہیں؟ حرکات کی 2 قسمیں ہیں۔ حرکات کی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پڑھی حرکات۔ نمبر 1 پڑھی حرکات۔ نمبر 2 کھڑی حرکات۔ نمبر 1 پڑھی حرکات، نمبر 2 کھڑی حرکات۔ نمبر 1 پڑھی حرکات، نمبر 2 کھڑی حرکات۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کی 2 قسمیں، نمبر 1 پڑھی حرکات، نمبر 2 کھڑی حرکات۔ اچھا یاد رکھیں زبر، زیر، پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں، اور کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے
کہ ज़बर किसे कहते हैं। अगर आप किसी से पूछें ज़बर किसे कहते हैं तो अक्सर जवाब मिलता है कि जी जो हर्फ के ऊपर होती है उसको ज़बर कहते हैं। हर ज़बर की डेफिनेशन ये नहीं है, ज़बर की जो तारीफ़ है हम वो पढ़ते हैं। सवाल क्या है अपने जहन में रखिएगा, सवाल कि ज़बर किसे कहते हैं, सवाल अपने जहन में रखिएगा, ज़बर किसे कहते हैं। इसका जवाब है हर्फ के ऊपर तिरछी सी लकीर को, हर्फ के ऊपर तिरछी सी लकीर को ज़बर कहते हैं। हर्फ के ऊपर तिरछी सी लकीर को ज़बर कहते हैं। देखें ये बा है, बा के ऊपर तिरछा ऐसे बनाएं तो इसको क्या कहते हैं, ज़बर। हर्फ के ज़बर की पूरी डेफिनेशन क्या है कि हर्फ के ऊपर तिरछी सी लकीर को ज़बर कहते हैं। अब सवाल ये कि ज़ेर किसे कहते हैं, सवाल अपने जहन में रखें, ज़ेर किसे कहते हैं। बच्चों से पूछें, बच्चे बताएं ज़ेर किसे कहते हैं, तो बच्चों को बताएं हर्फ के नीचे, हर्फ के नीचे तिरछी सी लकीर को ज़ेर कहते हैं। हर्फ के नीचे तिरछी सी लकीर को ज़ेर कहते हैं। याद रखें ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होती है और ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे होती है। हर्फ के नीचे तिरछी सी लकीर को ज़ेर कहते हैं। अब सवाल ये है कि पेश किसे कहते हैं, बच्चों को बताएं, बेटा पेश किसे कहते हैं। बच्चों को फिर बताएं हर्फ के ऊपर मुड़ी हुई तिरछी सी लकीर को, मुड़ी हुई तिरछी सी लकीर को पेश कहते हैं। हर्फ के ऊपर मुड़ी हुई तिरछी सी लकीर को पेश कहते हैं। जैसे बा पेश बू, बा पेश बू, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। ज़बर किसे कहते हैं, हर्फ के ऊपर तिरछी सी लकीर को ज़बर कहते हैं। ज़ेर किसे कहते हैं, हर्फ के नीचे तिरछी सी लकीर को ज़ेर कहते हैं। पेश किसे कहते हैं, हर्फ के ऊपर मुड़ी हुई तिरछी सी लकीर को पेश कहते हैं। अब सवाल ये है कि जिस हर्फ पर यानी बा पर या ता पर, अलिफ से बा से या तक जिस हर्फ पर भी ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए उसे क्या कहेंगे। जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए उसको क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए उसे मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं, मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। अब मुतहर्रिक का क्या मतलब है, यानी हरकत वाला। मुतहर्रिक का मतलब है हरकत वाला। मुतहर्रिक हर्फ को पढ़ते वक्त कितनी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मुतहर्रिक हर्फ को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी जिस हर्फ पर ज़बर ज़ेर या पेश होगी उसे मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। मुतहर्रिक हर्फ को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कौन कौन सी हैं, फिर पढ़ते हैं। मुतहर्रिक हर्फ को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, खींच कर नहीं पढ़ना, यानी लंबा करके नहीं पढ़ना, खींच कर नहीं पढ़ना। जैसे बाज़ औक़ात बच्चे पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आ। नंबर 1, खींच कर नहीं पढ़ना, यानी लंबा करके नहीं पढ़ना। जैसे बच्चे पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, खींच कर नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई,
हमजा पेश उ, आ ई उ। नंबर 2, झटका पैदा नहीं करना। नंबर 2, झटका पैदा नहीं करना। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बु बच्चे पढ़ते हैं, इस तरह नहीं पढ़ना। बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश बु, बा बी बू। नंबर 3, मजहूल नहीं पढ़ना। नंबर 3, मजहूल नहीं पढ़ना। अब सवाल ये कि मजहूल क्या होता है और मारूफ पढ़ना है। मारूफ क्या होता है? मजहूल ये होता है जैसे हम उर्दू ज़ुबान में पढ़ते हैं, बे ते से जीम चे हे खे, इसको मजहूल कहते हैं। और मारूफ क्या होता है? जो हम अरबी में पढ़ते हैं, कुरान मजीद को पढ़ते हुए हमने कायदा पढ़ा है, कायदे में पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा ख, इसको मारूफ कहते हैं। यानी मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, अगर अलिफ पर, जैसे ये अलिफ है, अगर अलिफ पर ज़बर आ जाए या ज़ेर आ जाए या पेश आ जाए, अगर अलिफ पर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए तो अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं। अलिफ याद रखें, अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं होती। अगर अलिफ पर कोई हरकत आ जाए, ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, 2 ज़बर आ जाए, 2 ज़ेर आ जाए, 2 पेश आ जाए, साकिन आ जाए, मुशद्दद आ जाए, कुछ भी आ जाए अलिफ पर, तो अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते, अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं। अलिफ हमेशा खाली होता है। अगर हर्फ रा पर ज़बर या पेश आ जाए तो रा को मोटा पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे। अगर हर्फ रा पर ज़बर या पेश, यानी ये मैं लिखता हूँ रा ज़बर रा ज़ेरी रा पेश रू। अब अगर ज़बर आ जाए या पेश आ जाए तो मोटा पढ़ेंगे। अगर हर्फ रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। जैसे इस रा के नीचे ज़ेर है तो इसको हम बारीक पढ़ेंगे, इसको मोटा पढ़ेंगे, इसको भी मोटा पढ़ेंगे। तो ये नीचे तख्ती है, इसकी हम थोड़ी सी मश्क करते हैं। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ, बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू, हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, आइन ज़बर आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आई औ। यहाँ तक ये है आज का हमारा सबक। इसको अच्छे तरीके से याद करें, नोट कर लें और बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को पढ़ाने का तरीका यही है कि जब बच्चे ये वाली तख्ती पढ़ें तो ख़ुद रवां करें। जब खुद रवां करें तो मश्क आती है नीचे, बासारा बालागा फ़अला, वो बच्चे रवां भी पढ़ें, तोड़ जोड़ भी पढ़ें। जब तोड़ जोड़ और रवां दोनों तरीक़ों से ख़ुद पढ़ लें उसके बाद तख्ती नंबर 4 तनवीन पर लेकर जाना है, उससे पहले तख्ती नंबर 3 पर ही रखें। और यहाँ तक आज का हमारा सबक है। बाकी कल हम इसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मश्क करेंगे और इसे याद करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। जज़ाकल्लाह।